Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss environment current affairs. तो लास्ट वीक के जो टॉपिक्स हैं तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 5 days ago, UN Chief Antonio Guterres gave the statement that humans are waging suicidal war on nature. So इसका मीनिंग क्या है, इस न्यूज़ में क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द central objective next year is to build a global coalition. So he emphasized upon establishing a global coalition with the main objective to reduce the emissions to net zero. So what is the meaning of net zero? Net zero means to cutting greenhouse gas emissions as far as possible and balancing any further release by removing an equivalent amount from the atmosphere. So it means दो चीज़ें हैं, एक तो हमें जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, दूसरा ये है कि जो अभी तक एमिशन हो रहा है हमें उसके इक्विवेलेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिमूव करना है, जैसे कि CO2 है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम कार्बन सिंक जो होते हैं उसको डेवलप करते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन है, ओशंस को हम क्लीन अप करते हैं, तो ओशन और फॉरेस्ट दोनों एक बहुत बढ़िया कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है बाय रिमूविंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट of greenhouse gases from the atmosphere. So next he proposed that every country, city, financial institution and company should adopt plans for a transition to net zero emission by 2050. तो ये भी एक बहुत important point है। So next है the main objective will be to cut global emissions by 45%. So जो 2010 के जो levels हैं अगर हम उससे compare करें तो 2030 तक 45% जो हैं वो emissions जो हैं वो reduce होनी चाहिए। Okay, and recommendations given by the Antonio Guterres are that put a price on carbon and phase out fossil fuel finance and end fossil fuel subsidies. जितना जल्दी हो सकता है हमें ये स्टेप्स उठाने चाहिए। एंड ही आल्सो रिकमेंडेड to shift the tax burden from income to carbon and from taxpayer to polluters. So as you have also heard about polluters pay principle, so उसमें क्या है कि जो pollution create कर रहा है, जो कोई कंपनी है, कोई पर्सन है, तो उनको पे करना पड़ेगा for the pollution they have caused. So next is to integrate the goal of carbon neutrality into all economic and fiscal policies and decision. It means जो हमारे actions है, जो हमारी policies हैं, so they should be inspired by the goal of greenhouse gas reduction. ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू हिम unless the world cuts fossil fuel production by 6% every year between now and 2030, things will get worse. Okay, so climate policies have not yet risen to the challenge because जो बहुत सारी developed nations हैं वो अभी तक मान नहीं रही हैं कि जो pollution है वो cause कर रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना अब्रप्टली, तो वो उनकी वजह से तो वो मान नहीं रहे, तो इसलिए जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं वो अभी अपनी एक्चुअल शेप में नहीं आ रही हैं। सो विदाउट कंसर्टेड एक्शन देयर विल बी 3 to 5 डिग्री टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी। तो जो हमारा ग्लोबल जो मिशन है वो क्या है कि जो सेंचुरी एंड तक इसको 2 डिग्री राइज से कम पे रोकना है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो राइज है ये 3 to 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। सो इसी वजह से देर आर एपोकैलिप्टिक फायर्स एंड फ्लड्स, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स आर द न्यू नॉर्मल, दे आर वेरी मच फ्रीक्वेंट नाउ। सो बायोडाइवर्सिटी इज कोलैप्सिंग, डेजर्ट्स आर स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन हो रही है, ओशंस जो हैं दे आर फुल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिकॉज एवरी ईयर वी एड अप around 8 million metric tons of plastic into the oceans and there is already 150 million of plastic in the oceans. ठीक है। So next अगर हम बात करें, so we can see here situation is alarming. The nations of the world must bring ambitious commitment. So next year क्या होने वाला है? International Climate Conference the UK and Italy are hosting in Glasgow. तो वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी कमिटमेंट्स जो हैं उनको लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर नवंबर में। सो नेशंस शुड टेक स्टेप्स टू टैकल द एक्सटिंक्शन क्राइसिस बिकॉज देयर इज रैपिड एक्सटिंक्शन ऑफ सो मैनी स्पीसीज ऑल ओवर द ग्लोब एंड दैट इज डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी एंड to step up effort to reduce the pollution. So if we control the pollution only, then we can save these precious species. So he acknowledged that European Union, the US, China, Japan, South Korea and more than 110 other countries have committed
टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी। ओके, तो ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो रिसेंटली विलो वार्बलर, ओके, सो ये स्पीसीज का नाम है, बर्ड स्पीसीज है। विलो वार्बलर वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेलियानी पंचकरी राइस फील्ड इन केरला, इंडिया। तो ये कहाँ पर है? वेलियानी पंचकरी पैडी फील्ड्स आर ए बर्डिंग हॉटस्पॉट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ त्रिवेंद्रपुरम, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फाइलोस्कोपस ट्रोकिलस। ओके, सो ऐसे जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को मेंशन किया गया हो। सो इट्स हैबिटेट is found in the wooded habitat which is from mixed forest to willow thickets. So willow thickets means जो group of shrubs होते हैं उसको हम कह रहे थे willow thickets in open country. So it is usually seen in European. So इसकी जो range है, इसका जो habitat है, it expands from European and the Palearctic region and migrates to sub-Saharan Africa. सो ये स्मॉल बर्ड है लेकिन ये माइग्रेटरी स्पीसीज में आते हैं। सो टू सब सारन अफ्रीका ड्यूरिंग द अर्ली विंटर। सो थ्रेट अगर हम कंसीडर करें, ड्रॉट लाइट कंडीशंस इन विंटर एंड हैबिटेट चेंज ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस ड्यू टू द एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज। सो देयर इज थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस। ओके, लेकिन अगर हम इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है अंडर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। और अदर प्रॉपर्टीज, इसके जो वेट 10 ग्राम्स, हैविंग लॉन्ग विंग फेदर्स एंड लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। अगर हम स्मॉल बर्ड्स की कैटेगरी में देखें, दैट ब्रीड थ्रू आउट द नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप। सो दे आर जनरली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ड्यू टू द चेंज इन प्लमेज ट्वाइस ए ईयर। तो प्लमेज होता है जो आउटर फेदर्स होते हैं किसी बर्ड के, तो उसमें क्योंकि चेंज आती है ट्वाइस ए ईयर, तो इसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 25। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज अप्रूव्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर्स कंजर्वेशन 2020 to 25। सो दिस प्लान वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिशिंग। तो इसके अंडर जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा इन उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो दिस इज लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड दिस इज स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये दो स्पीसीज हैं वल्चर की। सो व्हाट आर द की प्रोविजंस इन दिस कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर द रेड हेडेड वल्चर एंड इजिप्टियन वल्चर। तो एटलीस्ट हर स्टेट में देयर विल बी अ वल्चर सेफ जोन इन एवरी स्टेट। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेमिनेंट पॉपुलेशन, जो कम पॉपुलेशन जो बच गई हैं वल्चर्स की उनको और कंजर्व करने के लिए यहाँ पर वल्चर सेफ जोन बनाया जाएगा। सो 4 रेस्क्यू सेंटर्स विल बी देयर। सो 1 इन पिंजौर इन नॉर्थ इंडिया, भोपाल इन सेंट्रल इंडिया, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट एंड हैदराबाद इन साउथ इंडिया। So it will prohibit the veterinary use of drug diclofenac because the main reason for the for the decrease in number of vultures is diclofenac, which is a veterinary drug given to the cattle. तो उससे क्या होता है, जो dead animals होते हैं vultures feed on them, और due to फीडिंग तो जो डिक्लोफेनेक है वो एंटर करती है वल्चर्स के बॉडी में, तो उनके जो एग्स हैं उनकी अर्ली हैचिंग हो जाती है, जिससे कि इनकी जो पॉपुलेशन में बहुत ही ड्रास्टिक जो है वो डाउनफॉल आया है। चलिए अबाउट वल्चर्स अगर हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ द 22 स्पीसीज ऑफ लार्ज बर्ड्स दैट लिव प्रीडोमिनेंटली इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ओके, सो दूसरी बात है, इनको नेचर्स गार्बेज कलेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि जो जितना भी ये रेमिनेंट्स होते हैं, जो डेड फ्लैश है, उनको ये एनवायरनमेंट से रिमूव करते हैं। सो इंडिया हैज़ 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स, नेमली ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन वल्चर, रेड हेडेड, इजिप्टियन बियर्डेड, सिनेरियस एंड यूरेशियन ग्रिफन वल्चर। सो देयर आर 9 टाइप्स। और जो ओरिएंटल वाइट बैक्ड है, स्लेंडर बिल्ड है, लॉन्ग बिल्ड एंड red-headed, they are considered as critically endangered species of vultures, and the Egyptian vulture is considered as endangered species of vulture। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसको थ्रेट्स की बात करें जो वल्चर्स के लिए, तो उसमें है पॉइजनिंग ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ डिक्लोफेनेक, जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक
एक्टिविटीज़ एंड फूड डर्थ एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड इलेक्ट्रोक्यूशन बाय पावर लाइंस। तो इससे भी जो काफ़ी जो है वो डेथ होती है वल्चर्स की। कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन वाज लॉन्च इन 2006 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अंडर दिस वेटनरी यूज ऑफ डिक्लोफिनिक वाज बैंड, ठीक है, विच रिजल्टेड इन चेकिंग द वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 2011। तो 2011 के बाद जो इसकी जो पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा था उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। उसके बाद जो कंजर्वेशन एफर्ट्स से और बढ़ाए गए तो इनकी जो पॉपुलेशन है अब नॉर्मल की तरफ आ रही है। द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिया प्राइमरली आर फोकस्ड ऑन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उनके ऊपर जो है वो मेन फोकस रहेगा। और अगर हम बात करें इसके जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम की, तो उसमें जो मेन जो एंटिटीज़ हैं वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड अनदर वन इज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। तो अगर हम टोटल उसके जो ब्रीडिंग सेंटर्स की बात करें, ठीक है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, तो उनमें से जो 3 ऑफ देम आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो अगर हम बात करें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 5, तो उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सेक्शन 5A। सो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर, तो इट कैन ओनली एडवाइज टू द गवर्नमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बिहार, भागलपुर, ठीक है। सो बिहार इज होल्डिंग अ बर्ड फेस्टिवल फॉर फर्स्ट टाइम टू सेव द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये कहाँ पर होगा, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो ये होगा इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर हमारे पास एक 60 किलोमीटर स्ट्रेच है बिहार में, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव एंड हैड लॉन्ग बीन हब ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये पहले से ही माइग्रेटरी बर्ड्स का हब रहा है। तो यहाँ पर भागलपुर में ये माइग्रेटरी बर्ड्स का फेस्टिवल होगा, तो उनको कंजर्व करने के लिए और जो नॉर्मल लोकल पॉपुलेशन है उनमें अवेयरनेस लाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द रिंगिंग ऑफ बर्ड्स का मीनिंग क्या है कि बर्ड्स को पहले कैप्चर किया जाता है, तो उनके जो टीब या बोन होती है उसमें रिंग डाली जाती है, तो उनके बारे में जो डाटा कलेक्ट करने के लिए, और उनमें कई बार जो है गैजेट्स जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि उनकी जो मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, ठीक है। तो दे आर वेड एंड देयर डिटेल्स आर लॉग्ड बिफोर अ मेटल रिंग इंस्क्राइब्ड विद अ यूनिक नंबर इज टाइड टू देयर टीबिया बोन, ठीक है। तो ये है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द Apex Committee for the implementation of the Paris Agreement. So this was recently news. So AIPA will have the Secretary, Union Ministry of Environment and Forest and Climate Change as a chairperson. तो जो इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं वो इस कमेटी के क्या होंगे, वो चेयरमैन होंगे। तो AIP has been constituted with the purpose of ensuring a coordinated response on climate change matters that protects the country's interest. तो जो हमारे नेशनली जो डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको ये कन्वे करेगी टू द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इट विल आल्सो इंश्योर दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टूवर्ड्स मीटिंग इट्स क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो जो हमारे जो मिटिगेशन स्टेप्स हैं, जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, तो उन सभी को ये कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, तो और साथ में ये कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, UNFCCC के साथ। So it will define the responsibilities of the ministries, और among the ministries जो coordination है उसको भी ये coordinate करेगी, supervise करेगी। And AIPA will also act as a national authority for the regulation of carbon markets in India under the Paris Agreement, ठीक है। तो it means इसका जो एक main function होगा वो coordination का रहेगा, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो भी एक्शंस हैं, जब पॉलिसीज़ जो हम अंडरटेक कर रहे हैं, तो उनको कन्वे करना है UNFCCC को, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर नाउ। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स। सो टिल देन, थैंक यू।